नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात उत्तर पूर्व के चुनावी नतीजों की। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में नतीजों का दिन रहा, लेकिन ऐतिहासिक दिन है नागालैंड के लिए। यहाँ 60 सालों में पहली बार महिला विधायक चुनी गई हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी की हिक्कानी जाखालू दीमापुर 3 सीट से जीती हैं। 47 साल की हिक्कानी जाखालू को 1,500 से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। हिक्कानी जाखालू को 14,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उसके उम्मीदवार एजेटो झिमोमी को हराया है। उनकी राजनीति में शरीक हुए महज 7 महीने हुए हैं। पेशे से वकील हैं। पिछले 17 वर्षों से एक एनजीओ के जरिए उन्होंने समाज सेवा का काम किया है और वो हमारे साथ देश की बात में जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत बधाई हिक्कानी जाखालू। ऐतिहासिक लम्हा है नागालैंड के लिए। 60 साल में पहली बार महिला उम्मीदवार जीती है, कोई महिला विधायक बनी है। हाउ डज इट फील? I'm feeling so blessed. I mean, I know this is historic. I know this is historic. Our people, we have been praying for this, and finally the day has arrived. क्या कारण आप देखती हैं इसके पीछे? बरसों तक अब तक कोई महिला उम्मीदवार इस राज्य से नहीं जीती थी। See, हमारा नागालैंड है, हमारा इंडिजिनस कम्युनिटी, और anywhere in the world, indigenous community का बहुत patriarchal mindset होता है. So that is also one of the reason why women have been excelling in every field in Nagaland. But the decision-making body, it was always lagged behind. But now times are changing. अभी लोगों का mindset change हो रहा है, and my win has proved that people have started accepting that women can also be in the highest decision-making body. बिल्कुल। आप हार्वर्ड में पढ़ी हैं, आप लॉयर रही हैं, नारी शक्ति सम्मान आपने जीता है। भरोसा कैसे जीता आपने यहाँ पर लोगों का? I was a practicing lawyer and then I gave up everything in 2005. हमने नया चैप्टर in my life मैंने शुरू किया 2006 में, and my focus हम युवाओं के लिए, हमारा स्टेट में युवाओं के लिए, because I believe the future is in the hands of young people, but it should not just be a statement. स्टेटमेंट खाली होने से नहीं होगा, काम से दिखाना है। तो हमने ये 17 साल हमने युवा के साथ काम किया है, and so it's because of my experience. People also believe, as an NGO, I have been working for 17 years, and for that I won the President's Award, Nari Shakti, and so people have already seen my work, and that worked for me. बिल्कुल हिक्कानी, आपने 17 बरस तक परिश्रम किया। अब आगे आपका क्या फोकस एरिया रहने जा रहा है? Along with me, another woman candidate has won. So we have opened the window and the doors for women to be inspired and to follow the footsteps. तो आप 2 महिलाएं जीती हैं, क्या बदलाव आया है समाज में जो ये जीत मिली? One thing is for sure, both Madam Kruse and I, we are practitioners. We have been working on the ground for the people, with the people for a very, very long time. She's also a social worker. I have also been working with young people and the society for 17 years. So it is our experience that has brought us this far. तो हिक्कानी, अब किन मुद्दों पर कामकाज का इरादा है आपका? मेरा तो नंबर 1 मेरा कंस्टिट्यूएंसी है, एंड व्हेन आई हैव बीन गोइंग फॉर माय कैंपेन, मेरे लिए तो चार इशू में हम फाइट कर रहा था। One is on youth. I've been working with young people for 17 years, like I mentioned earlier. अभी हमारा दीमापुर 3, because this is my constituency, हमें यहाँ पे मेरा constituency first हमको prove करना है. So I'll be focusing on young people, because if young people are built, if young people are nurtured, if young people are mentored well, our society and our future is in safe hands. Number 2 है, like we all know, this is the first time, it's historic, that the Naga women is in the assembly, and it was important that the voices of महिलाओं को आवाज legislative assembly में, विधान सभा में पहुंचना है। तो वो हम make sure that the voices of young women, the voices of women reaches the policy level. I'm here to stand for women, to be the voice of women. हमारा constituency में half the population is minority community. You know, they are non-Nagas,
and till today they are the ones who have been voting an MLA or a minister in our constituency. But जब election खत्म हो जाता है हमारा minority community को तो एकदम वो ignore कर देता है. So I want to make sure that I am growing, I'm developing my place, but I'm also holding the hands of my minority community and working ahead. हिकानी, आपने कहा यूथ, महिला, माइनॉरिटी कम्युनिटी पर आप काम करेंगी. थर्ड पॉइंट में सुन नहीं पाए ठीक से, वो फिर से जरा दोहरा दीजिए. Model constituency. I want to make my constituency a model constituency. बिल्कुल. आखिर में सवाल कि देश की महिलाओं को आप क्या आज संदेश देना चाहती हैं? My message to my women everywhere in the country is there's nothing that is impossible. We dream and we forget to follow the dream sometimes, but this time my win has proved that you can big dream and you can achieve the dream as well. So I want to appeal and to urge especially young girls, that there's nothing that we cannot do, but we have to really work hard to achieve the dreams. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से बधाई इस ऐतिहासिक जीत के लिए. तो परिश्रम से कुछ भी हासिल हो सकता है और जो भी ठान ले महिलाएं हासिल कर सकती हैं. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. और अब हमारे साथ स्टूडियो में सुहास चाकमा मौजूद हैं, निदेशक हैं राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के. बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. ये बहुत अच्छा है सुहास जी, इतने बरस बाद आपसे फिर बात हो रही है जब ये पूर्वोत्तर के चुनाव हो रहे हैं. तो आज के चुनावों में जो 3 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, क्या अहम है, क्या महत्वपूर्ण आपको लग रहा है? मेरे ख्याल से सबसे जो महत्वपूर्ण है, बीजेपी को एक क्लियर मैसेज है, दे हैव टू परफॉर्म बेटर. अगर आप देखते हैं ये त्रिपुरा में उनका वोट शेयर काफ़ी घटा है, 10% के करीब. एंड मेघालय में भी जो परफॉर्मेंस है 2 सीटों से 3 सीट चला गया, दैट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट. और जहाँ पे नागालैंड पे कांग्रेस इवन डजंट एग्जिस्ट, अगर आपको 21 अन्य मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतते हैं, तो it basically shows that the NDPP and the BJP, they have not been able to convince a large chunk of the population. 30% of the candidates are independent candidates. So at least in Nagaland. तो तीनों राज्यों में जो वोट शेयर कमे है बीजेपी का, आई थिंक दैट्स अ मैसेज कि दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स. ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी हैज टू पुल अप इट्स सॉक्स, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इनरोड्स बनाई हैं यहाँ पर, और कांग्रेस एक समय रही सत्ता में, और विपक्षी जो लेफ्ट हैं वहाँ पे क्या कमजोरी रह गई, वहाँ पे क्या होने की ज़रूरत है, या ये माना जाए जो रीजनल वॉइसेस हैं वो अब मजबूत हो रही हैं, वो एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए आगे? नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में ख़त्म ही है. एंड बहुत सारे स्टेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ त्रिपुरा एंड असम, अदर जो स्टेट्स है बेसिकली सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं, पावर में रहते हैं, उनका तरफ चले जाते हैं. तो कांग्रेस अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस तो था ही नहीं. कांग्रेस मेरे ख्याल से त्रिपुरा में खाली एक ही कैंडिडेट था, सुदीप राय बर्मन जी जो थे, वो जीते हैं. हाँ, वो जीते हैं. तो अभी तक तो कभी वो हारे नहीं. तो और दूसरी बात ये है कि लेफ्ट पार्टीज आई थिंक सिग्निफिकेंटली स्टिल हेल्ड ऑन टू देयर वोट शेयर्स. नहीं तो त्रिपुरा में ये भी डर था कि लेफ्ट पार्टीज जैसे वेस्ट बंगाल में बिल्कुल खत्म हो गया है, सफाई हो गया, त्रिपुरा में ये लोग सफाई ना हो जाए. और नागालैंड का बात ये है कि कांग्रेस तो है नहीं. तो इफ़ यू लुक एट एक्चुअली परफॉर्मेंस वाइज, कांग्रेस जो परफॉर्मेंस मेघालय में किया है, दैट शुड बी नोटेड इन द सेंस कि उनका जो पॉलिटिकल पार्टी था, जो 12 MLA है, मुकुल संगमा जी के साथ तृणमूल कांग्रेस में चला गया. तो तब भी अगर 5 सीटें कांग्रेस जीते हैं, तो इट बेसिकली शोज कि मुकुल संगमा डिपार्चर डिड नॉट हैव उतना इफेक्ट. तृणमूल कांग्रेस के राइज को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, तृणमूल कांग्रेस डजंट एग्जिस्ट, कहीं पे नहीं है, कोई मार्क नहीं हो पाया. कोई इवन वेस्ट मेघालय में जो सीट जीते हैं, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ तृणमूल कांग्रेस, वो मुकुल संगमा के चलते जीतते हैं. तो तृणमूल कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता. मसले क्या क्या जो मुद्दे हैं वो क्या यहाँ पर अहम रहे? बीजेपी ने जिस तरह से इनरोड्स बनाई, उन्होंने जो वहाँ पे सांस्कृतिक तमाम चीज़ें हैं उसको भी, क्रिश्चियन बहुल ये राज्य है, क्रिश्चियन बहुल राज्य है, यहाँ पर बीजेपी जैसी पार्टी इतनी मजबूत इनरोड्स बना लेती है, वो तमाम चीज़ों पर वहाँ पे समझौता करती है, रीजनल पार्टी से समझौता करके बनाती है. तो चुनावी रणनीति आप बीजेपी की
कैसे आंक रहे हैं यहाँ पर अपने गढ़ बनाने के लिए? मेरे ख्याल से वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। जैसे त्रिपुरा में लोग कहते हैं कि त्रिपुरा मोता बहुत पावरफुल है, लेकिन त्रिपुरा मोता कोई मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। त्रिपुरा में जितने सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत सारे त्रिपुरी का लाभा भी उन्न समुदाय है। तो अगर आप देखते हैं चकमा जो कम्युनिटी है, मेरा कम्युनिटी है, वो ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और दो जो कैंडिडेट बीजेपी को मिला है ट्राइबल से, वो दो चकमा है। तो जो एथनो नेशनलिज्म है, ये सब नेशनलिज्म है, दे प्ले इट इनटू वेरी वेल। एंड और ये बात भी कहूँगा कि बीजेपी गिव्स अप its entire ideologies when they go to the northeast, whether it's a beef issue, Christianity issue, conversion issue, none of these issues are raised. So वहाँ पे जो लोग हैं, Charge also is very happy to accept them because Charge will get that much attention from BJP वहाँ पे, जो बाहर actually आएंगे वो अलग हो जाते हैं। तो एडाप्टेबिलिटी आई थिंक इज वन थिंग व्हिच दे हैव बीजेपी ने करा है, जिससे फायदा उनको राजनीतिक फायदा अपने आप में हो रहा है। आगे आपका क्या अंदाजा है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, इस पूरे क्षेत्र की जो राजनीति है उसमें आप किस तरह से स्थिति आंक रहे हैं? मेरे ख्याल से जो 10% वोट बीजेपी का कमा है त्रिपुरा में, और 21 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नागालैंड में जीते हैं, और एनपीपी basically held on to its position, तो it's a clear message कि कुछ भी हो सकता है, nothing should be taken granted. and especially नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे लोग सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसको सपोर्ट करते हैं, तो उस बेसिस पे अगर रिएक्शन देखते हैं सपोर्ट, तो वो वाला है नहीं। बिल्कुल सुहास चकमा, आप हमारे साथ आए और आपने ये समझाया हमें कि जो नतीजे आ रहे हैं उनके अपने आप में क्या मायने हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम सीधे चलते हैं नलिन कोहली के पास। नलिन कोहली आपको बता दें कि प्रभारी हैं नागालैंड बीजेपी के। पहले तो नलिन जी आपको बहुत बहुत बधाई। नागालैंड में बीजेपी के आप प्रभारी हैं, फिर सत्ता में एक बार फिर से एनडीपीपी के साथ आप बीजेपी वापसी कर रही है, पहली बार 2 महिलाएं यहाँ पे जीत रही हैं, तो राज्य में एक बड़ा बदलाव हो रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये जो जीत नागालैंड में है और त्रिपुरा में, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जिस प्रकार से यहाँ पर शांति और विकास के लिए बहुत काम किए गए हैं पिछले 8 साढ़े 8 सालों में, ये उसी का फल है। जनता यहाँ पर, वोटर ये पहचान रहे हैं कि सच्ची निष्ठा के साथ, एक अच्छी मंशा के साथ यहाँ विकास और शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार केंद्र में और स्थानीय सरकारें जो है, जैसे नागालैंड में चीफ मिनिस्टर रियो के साथ या त्रिपुरा में हमारी सरकार थी, ये सब जो है इन चीज़ों को ज़मीन पर उतार रहे हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री जी स्वयं पिछले 9 वर्षों से कम समय में 51 बार पूर्वोत्तर आए हैं, खुद 51 बार आए हैं। यदि देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले 5-6 दशकों में 2 लाख करोड़ से कम खर्च हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में यह 7 लाख करोड़ के करीब हो गया है। 400 विजिट्स हमारे मंत्रियों ने किए। क्यों? ताकि जो भी कार्यक्रम है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, हाईवेज के हो, इंटरनेट के लिए हो, एयरपोर्ट्स के लिए हो, या किसान सम्मान निधि की बात हो, हर प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो जमीन पर काम आगे बढ़े। यहाँ पर उन काम का जो विकास हो पूर्वोत्तर में, और पूर्वोत्तर भी एक ग्रोथ इंजन बने। तो मैं इसे एक सकारात्मक वोट मानता हूं और मानता हूं कि ये बहुत अच्छी दिशा है राजनीति, जो विकास की राजनीति है, शांति की राजनीति के लिए। लेकिन इस बार जो एनडीपीपी है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, वो अपने बूते ही बहुत मजबूत प्रदर्शन कर रही है। आपको क्या लगता है, पिछली बार की तरह बीजेपी को जो तवज्जो मिली थी इस बार उतनी मिलेगी? निधि जी, जस्ट आपको जरा आंकड़ों के बारे में बता दूं तो मेरी जानकारी में एनडीपीपी के 25 सीट है और हम 12 जीत चुके हैं। तो यहाँ पर हाफ वे मार्क है जो 31 का, 60 का हाउस है। तो हम लोगों ने इस अलायंस को एक साथ लड़ा है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस अलायंस में हमने लगातार इसको कहा है कि 40 हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो ग्लोब सिंबल, जो एनडीपीपी के सिंबल है, उस पर लड़े हैं, और 20 हमारे उम्मीदवार लोटस या कमल के सिंबल पर लड़े हैं। और ये जो है जॉइंट कैंपेन हमारा जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ कोहिमा में किया। उसके बाद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, 2 दिन के दौरे पे थे। एक रात उन्होंने बिताई है ईस्टर्न नागालैंड में, मोन में ईस्टर्न नागालैंड में। वो भारत के पहले गृह मंत्री हैं जो एक रात वहां बिताए। ये एक बहुत बड़ी बात है।
फिर हमारे कई बड़े नेता और आए, कैंपेन किए। एक दिन मुख्यमंत्री के साथ डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और यहाँ रियो साहब ने कैंपेन किया। 3 महिलाओं के सीट पे कैंपेन किया और ये ऐतिहासिक बात है कि 2 महिलाएं इस बार चुन के आई हैं, दोनों एनडीपीपी से। भाजपा की जो उम्मीदवार थी अतोइजो से इंजीनियर काहुली, मात्र 600 वोट से हारी है। और ये पहली बार होगा कि एक महिला जो है 1963 से लेके आज तक पहली बार 2 महिलाएं जो है चुन के हाउस में वो सदस्य बन रहे हैं। बिल्कुल। और एक और जो सवाल जहन में आता है नलन जी, वो ये कि क्रिश्चियन बहुल राज्यों में बीजेपी मजबूत प्रदर्शन कर रही है। क्या रणनीति है, क्या कारण है इसके पीछे कि जो इस समुदाय का बीजेपी भरोसा जीत पा रही है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक सकारात्मक एजेंडा रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का की कोई भी योजना हो, वो ये नहीं देखता है कि कौन व्यक्ति है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी धर्म से हो। वो योजना केवल देखता है कि लाभार्थी को फायदा मिलना चाहिए और उन तक योजना पहुंचनी चाहिए, बस एकमात्र यही है। इसी निष्ठा के साथ यहां पूर्वोत्तर में भी काम हुआ। मैंने कई चीजें आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया और आप देखेंगे नागालैंड में 55,000 मकान बने हैं गरीबों के लिए। 2 लाख से ऊपर ऐसे किसान हैं जिनके अकाउंट्स में 6,000 रुपए सालाना डायरेक्टली जा रहा है। हमारा आयुष्मान भारत का फायदा कई लोगों ने लिया है, 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस तक। यहां मोदी राइस कहा जाता है, जो चावल जो है अनाज जो है गरीबों के घर तक पहुंच रहा है। तो काम हुए, सच्ची मंशा से हुए, डिलीवरी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, रोड्स आए, तो ये चीजें जनता देखती है और मुझे लगता है काम बोलता है। लेकिन नलन जी, खान पान को लेकर यूपी हरियाणा में तो हिंसा हो जाती है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे एक तरह से समझौता कर लिया है। ये ठीक है कि जो सरकारें हैं, कौन क्या खाता है पीता, उस पर दखल नहीं देना चाहिए? बीजेपी ने तो कभी भी दखल नहीं किया। मैं प्रभारी पूर्वोत्तर राज्यों का 10 साल से हूं, पहले मिजोरम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर और अब नागालैंड। और कभी भी मुझे पार्टी से ये कोई आदेश नहीं हुआ कि किसको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये एजेंडा मुझे लगता है बाहर बनाई जाती है। बताइए किस कार्यक्रम में या किस योजना में हमने ऐसा कहा है? हम इस बात को स्वीकारते हैं, जिनका जो खान पान है, जैसा रहना है, जैसे कपड़े पहनने, वो उनका अधिकार है, ये तो राज्य तय करते हैं। अब कहीं पर कोई हिंसा हो जाए, कोई व्यक्ति हिंसा करते, लोग उसे बीजेपी से जोड़ देते हैं। बीजेपी ने कहां पर कानूनी प्रक्रिया कहीं पर रोक रखी है? और क्या जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें हिंसा नहीं होती इन्हीं विषयों पर? तो भाजपा को क्यों जोड़ा जाता है इसके साथ? भाजपा का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चलिए नलन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपके साथ भी जुड़ने के लिए। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं और आपके दर्शकों को नमस्ते। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, त्रिपुरा की नई पार्टी त्रिपुरा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और अब आपको बता दें उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ने त्रिपुरा के जो प्रमुख हैं दीप बर्मन जी, उनसे बात की है। आइए सुनते हैं। आपकी पार्टी के बारे में अब बात करें तो आप ऑपोजिशन में बैठेंगे, आप जो ट्राइबल काउंसिल है एडीसी, वहाँ पे आप सत्ता में हैं। तो इस चुनाव के पहले जो एक टसल थी, पॉलिटिकल टसल थी एडीसी एरिया में कि बीजेपी पावर में है स्टेट में, आप पावर में है एडीसी में, वही समीकरण रह जाता है इस बार। मगर इस बार आप असेंबली के अंदर में भी हैं, तो किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आज हम 13 सीट जीत के आए हैं, 0 से 13, और हमारा वोट शेयर 20 से भी ऊपर है, 21% है। दैट इज़ इटसेल्फ वेरी कमेंडेबल। आज तक कोई भी रीजनल पार्टी त्रिपुरा में 8 सीट से ज़्यादा नहीं ले आई, और इस बार और बिना अलायंस करके हमने 13 सीट लेकर आए हैं। ये हमारा एक अचीवमेंट है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी को भी विचार करना पड़ेगा, सेंटर को भी विचार करना पड़ेगा कि आप क्या त्रिपुरा के ट्राइबल्स को अलग रखकर राजनीति कर सकते हैं कि नहीं। अगर बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को त्रिपुरा के जनजाति के बारे में चिंता है, तो हमारा जो ज़मीन का इशू है, हमारा जो आर्थिक कंडीशन है, हमारा जो एडीसी है, हमारा जो इलाका है जहाँ में हमारे जनजाति लोग वंचित हैं, उनका भी सोल्यूशन उनको लाना पड़ेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आएंगे तो आप जनजाति का कल्याण करेंगे। लेकिन त्रिपुरा में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार ट्राइबल को छोड़कर
इस स्टेट में ठीक तरीके से डेवलपमेंट ला सकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें विचार करेंगे और अगर उनको हमसे बात करना है, हम तो तैयार है बात करने के लिए, हमेशा तैयार थे। हम संवैधानिक सोल्यूशन चाहते हैं, हम अपने ट्राइबल की भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं और अगर हमसे बात करेंगे तो हम रेडी हैं। और अगर उनको पॉलिटिक्स त्रिपुरा में करना भी है तो उनको सोचना चाहिए कि आप ट्राइबल्स को छोड़कर, अलग रखकर, जिस 20 सीट में 13 सीट हम लेकर आए हैं उनको छोड़कर आप त्रिपुरा में पॉलिटिक्स करेंगे तो त्रिपुरा का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। और जनजाति के दिल में जो चोट है, और वो सच बात है, एक अंदर से चोट है, वो हमेशा रहेगी। और खबर मिल रही है कि कॉनराड संगमा ने अमित शाह को फोन किया है। उन्होंने मेघालय में सरकार बनाने के लिए गृह मंत्री से समर्थन मांगा है। मेघालय में बहुमत है, दूर है संगमा की एनपीपी पार्टी। ये जानकारी थी। और अब आपको महाराष्ट्र से एक चुनावी खबर बता दें। कस्बा पेट उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धांडेकर 11,000 वोटों से जीते हैं। कस्बा पेट में बीजेपी उम्मीदवार ने हार स्वीकार की है। पुणे की कस्बा पेट सीट पर 1995 से आपको बता दें यहां पर बीजेपी का कब्जा था। पहली बार बीजेपी 3 दशक में यहां पे हारी है। कांग्रेस यहां पे विजयी हुई है। आज कस्बा में अगर आप देखें तो महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निकाल देखा जा सकता है, क्योंकि इसीलिए ही अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो भी गद्दारी हुई और जो राजनीतिक एक वातावरण बन चुका है वो किसी को भी पसंद नहीं आया। महाराष्ट्र में जो आज किसानों की हाल है, जो कायदा सुव्यवस्था की हाल है, और अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है वो लोगों को पसंद नहीं है। जनता देख रही है और जनता वैसे ही मतदान कर रही है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोरात। सर, एक बड़ी जीत हुई है पुणे के कस्बा विधानसभा उपचुनाव में। आप लोगों ने एक तरह से बीजेपी का किला फतेह कर दिया। ये तो है कि वो बीजेपी का वाली किला माना जाता था और 30 साल से ज्यादा वहाँ बीजेपी का ही प्रतिनिधित्व रहा। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि हमारा उम्मीदवार भी अच्छा कार्य करता था, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छा काम किया और बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब साधनों के साथ वहां उतरे थे। फिर भी लोगों ने निर्णय दिया, वो महाविकास आघाड़ी के लिए दिया। बीजेपी के जो कार्य पद्धति है और उसका तत्वज्ञान है, उसके अगेंस्ट अभी पूरे देश की जनता जा रही है, ये विरोध में जा रही है। इसका ये निकाल आपको दिखता है, इसका लक्षण है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम जी। सर, कस्बा सीट का जो परिणाम आया है एक तरह से बता रहा है कि जनता आप लोगों के साथ नहीं है। छोटे से अंतराल में बड़े कम वोटों से अगर एक सीट हार जाते हैं तो पूरे महाराष्ट्र को झटका। ये कौन सा तर्क है? हर चुनाव में वहां के कोई स्थानिक समीकरण होते हैं, वहां के सूत्र होते हैं, कुछ आधार होते हैं। हम कोई अन्य दलों की तरह नहीं है कि हार जाने के बाद ही। तो आज की एक और बहुत बड़ी खबर रही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और चुनाव आयोग की स्वायत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अब कमेटी करेगी सीईसी की नियुक्ति। 5 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला है। और आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता, विपक्ष और चीफ जस्टिस की कमेटी बनेगी। सीईसी और ईसी को समान संरक्षण और हटाने की समान प्रक्रिया होगी। सीईसी ईसी को सरकार नहीं हटा सकती है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा की तरह चुनाव आयोग का स्वतंत्र सचिवालय हो, यहां तक कि उनका अलग बजट भी हो। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं एसवाई कुरैशी सर, पूर्व चुनाव आयुक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको एक तरह से ऐतिहासिक बताया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं, क्या मायने इसके? जी, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है और इसकी तो मांग हम पिछले 20 साल से कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन और ड्यूरिंग सर्विस और रिटायरमेंट के बाद हमारे फॉर्मर सीईसी और इंक्लूडिंग मी कितनी बार हमने इस पे बात की है और मैंने तो इस पे कई आर्टिकल लिखे हैं। ये तो बहुत ओवरड्यू था
और मुझे खुशी है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और ये ऑर्डर कर दिया कि कोलिजियम होना चाहिए। कोलिजियम कोई हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, देश में ऑलरेडी सीवीसी, सीआईसी, इसके लिए कोलिजियम सिस्टम एक्ट में प्रोवाइडेड है, चलता ही है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम सिस्टम शुरू कराया था, वो चल रहा है। जजेस की अपॉइंटमेंट कोलिजियम से होती है, लेकिन वो चलो टोटली जुडिशियल कोलिजियम है। लेकिन बाकी के तो कोलिजियम ये वही हैं जो अभी सजेस्ट किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन की जो वो छवि है वो और मजबूत होगी। सर, ये कानून बनाने का काम जो हमारे संविधान बनाने वाले थे उन्होंने संसद पर छोड़ दिया था, लेकिन 7 दशकों में भी कानून नहीं बन पाया। आगे की राह आप कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बता दिया, ये फैसला दे दिया, अब आगे क्या प्रक्रिया कैसी होती? नहीं, मेरे ख्याल से जो ये कोताही और कमी थी सरकारों की, आती रही जाती रही और उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन बाय एंड लार्ज अच्छा ही चलता रहा, लेकिन अब जब कुछ दिन से सवाल उठने शुरू हुए तो ये मांग जो थी जरा और बढ़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कानून बनाओ। जब तक आप कानून नहीं बनाते, जो उन्होंने फैसला किया है वो जो तरीका है वो अडॉप्ट किया जाएगा आगे की अपॉइंटमेंट में। ये कुरैशी साहब, ये लागू कब से होगा, कब से माने? हो गया, लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कह दिया कि आप कानून बनाइए और कानून जब तक नहीं बनता, जब तक हमारा जो आदेश है उसके मुताबिक, यही कोलिजियम के मुताबिक काम कीजिए, तो ये नहीं लागू। तो आज से हो गया। ठीक है। और ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, लाइक जो हमारे अभी मुख्य चुनाव आयुक्त या जो चुनाव आयुक्त हैं तमाम, कब से उन पर असर पड़ेगा? क्या उनका कार्यकाल पूरा होने पर 2024 के चुनावों से पहले क्या ये असरदार होगा? उस लिहाज से क्या आप समझाएं? नहीं, उनके देखिए, उनका तो चुनाव हो चुका है ऑलरेडी और उनकी नियुक्ति हो चुकी है, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये था कि उनका रिमूवल प्रोसेस, उसकी जिसकी डिमांड की गई थी, तो उसको भी एक कमिश्नर की प्रोटेक्शन होना चाहिए, वही जो सीईसी को है, जो अब तक नहीं थी। तो अब जो मौजूदा 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं सीईसी के अलावा, उनको भी प्रोटेक्शन हो गई। अब वो भी रिमूव नहीं किए जा सकते सिवाय इम्पीचमेंट के। तो वो सिक्योरिटी की वजह से उनमें एक मजबूती का एहसास होगा और वो ज्यादा मजबूत और इंडिपेंडेंट फैसले ले पाएंगे। विपक्ष कितनी बारी टीएन सेशन को याद करता रहा है जब वो सवाल उठाते हैं कई फैसलों पर। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी सर कि जो ये पूरा ये मामला है, इसका असर, दूरगामी असर आप क्या देख रहे हैं? नहीं, दूरगामी असर ये है कि देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि इसकी न्यूट्रलिटी पे अगर किसी को भी जनता को शक होता है तो वो अच्छी चीज नहीं है। और हिंदुस्तान की सफलता इसी में है कि 70 साल से वे हम लोग इलेक्शन जो करते चले आ रहे हैं, तो हारने वाला जीतने वाले को हारने वाला नमस्ते करके कुर्सी देता है। ट्रांजिशन ऑफ पावर जो होती है वो बड़ी स्मूथ होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है, इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी है। बीच बीच में कोई सवाल उठा देता है कि ये सरकार का अपॉइंटेड है, सरकार से हुक्म लेता है, आदेश लेता है, तो अगर लेता है तो बहुत गलत बात है, अगर नहीं लेता और उस पर इल्जाम लग रहा है तो वो भी गलत बात है। कम से कम अब इल्जाम लगाने की जो गुंजाइश थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी किसी की उसको क्वेश्चन करने की, कि भाई जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी आपको सेलेक्ट किया है तो आप उसकी न्यूट्रलिटी पे बाद में शक कैसे कर सकेंगे? जी, और एक ये भी सवाल है, इसमें अड़चनें क्या लग रही हैं? क्योंकि अब जैसे एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात है, उसमें कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी, उस लिहाज से क्या अड़चन आ सकती है? क्योंकि दिन में जब ये वर्डिक्ट आया, हम बात कर रहे थे, कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि कुछ अभी पेचीदगियां हैं इसमें जो उठाई जा सकती हैं, जिस पर अड़चनें आ सकती हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ये अड़चनें ऐसी आ सकती है कि सरकार अगर कसर हो जाए कि नहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो नहीं है, स्पिरिट से जाना चाहिए। स्पिरिट ये है कि जो लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान के चलिए। और बल्कि कई जगह पे ये ऑलरेडी इस पे फैसला भी हो चुका है कि जो लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर है,
चाहे वो LOP की जो 10% रिक्वायरमेंट है उससे कम रह जाए, डजंट मैटर, तो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को बुला लीजिए, उसका जो जज्बा देखिए, स्पिरिट देखिए ना, इसकी टेक्निकलिटी में जाके कहेंगे तो नहीं है तो हम नहीं लेंगे, तो वो अड़चन वाली बात है। और वो अड़चन मुझे नहीं लगता है सरकार डालना चाहेगी, क्योंकि इसको ठीक स्पिरिट में लेते हुए सरकार इसको लागू करेगी। बिल्कुल, शायद मुझे बताया गया है कि जो इस पे कोर्ट ने इस पे भी एक जानकारी ये दे दी है कि अगर कोई LOP नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका नेता यहाँ पर इस कमेटी में होगा। सर, अंत में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस जो ये पूरा अब तक जो प्रक्रिया चलती आई है, तो आप भी मानते हैं कि उसमें कुछ खामियां थी, कमजोरियां थी, इसलिए ये फैसला दिया गया है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? ये खामियां ये इस बात में मानता हूं कि बात नहीं, मैं तो 20 साल से 15 साल से इसके ऊपर बार बार मीडिया में और कितने मैंने इस पर आर्टिकल लिखे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमजोरी थी। दुनिया की सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन और उसका रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा डिफेक्टिव, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, पूरी दुनिया में, कि इलेक्शन कमिश्नर को यूनिलेटरली गवर्नमेंट ऑफ द डे लगा दे। हमेशा उसका कोलिजियम होता है मिनिमम, कई जगह तो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, कई जगह तो पूरी पार्लियामेंट उनको इंटरव्यू करती है, उसकी लाइव टेलीकास्ट होती है, पूरी देश देखता है, इस तरह अपॉइंटमेंट होती है। और हमारे यहाँ चुपके से सरकार जिसको चाहती है लगा देती है। मैं भी उसी सिस्टम से आया था, लेकिन कमजोरी का एहसास होता था, और उस वक्त मैंने कुर्सी पे बैठे हुए यहाँ तक कहा था कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी मेरे ऑर्डर पे साइन किया होता तो मैं और अपने को मजबूत और चौड़ा महसूस करता। तो ये तो एक बड़ा बेसिक रिफॉर्म था जो बहुत दिन से पेंडिंग था। बिल्कुल, आपने तमाम सवाल हमें समझाए हैं, और एक सवाल जहन में था लेकिन शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमें गहराई से समझाने के लिए कि वाकई में जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो अपने आप में हमारे लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के कार्यान्वयन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण आज खबरें सामने आई हैं हाथरस को लेकर, वो भी आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। देश की बात में अब एक चुनावी खबर पश्चिम बंगाल से है। आखिरकार पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस का कोई विधायक पहुंच ही गया है। मुर्शिदाबाद के सागर दिघी उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है, जिनका लेफ्ट ने समर्थन किया था। तृणमूल कांग्रेस 2011 से इस सीट पर जीत रही थी। यहां से विधायक और मंत्री सुब्रत साहा की मौत के बाद उपचुनाव कराया गया। सभी दलों ने, बड़े नेताओं ने यहां पर प्रचार किया था। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई लगातार जारी है। आज सफदर अली के घर पर बुलडोजर चला, जो अतीक अहमद का सहयोगी है। प्रशासन का कहना है कि नक्शा पास ना हो पाने के कारण ये कार्रवाई की गई। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कल जफर अहमद के घर में बुलडोजर चला था, वो भी अतीक अहमद के करीबी बताए गए थे। यहाँ पर बताया गया था उनकी पत्नी और परिवार ने पनाह ली थी, किराए पर रहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज हाथरस मामले में भी अहम फैसला लिया है। हाथरस मामले में दोषी संदीप सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद के साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िता का परिवार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा, क्योंकि आपको बता दें अदालत ने इस मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। मुख्य आरोपी संदीप सिंह
को गैर इरादतन हत्या SC/ST एक्ट में सजा सुनाई गई है, जबकि जो 3 और आरोपी थे लव कुश, रवि और रामकुमार को बरी कर दिया गया है। ये घटना 14 सितंबर 2020 को हाथरस के चंदपा के बुलगाड़ी में हुई थी। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी।